Alright, good morning students. Welcome back to another lecture of excretion and osmoregulation. Last class तक हमने renal anatomy खत्म कर लिया था. Started up with human excretory system, renal anatomy. अब हम बात करने वाले renal physiology के बारे में. ठीक है? We will be talking about how urine has been formed and how urine has been excreted. Right? Now we already know a lot of things about kidney. That kidney plays an important role with respect to purification of your blood. Right? अब ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन है दैट अ लॉट ऑफ डेथ्स ड्यू टू किडनी डिसफंक्शन, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसफंक्शन, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस एक्सेट्रा. राइट, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी, हाउ किडनी वर्क्स, एंड उसको अच्छी क्वालिटी, उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए व्हाट आर दी फैक्टर्स रिक्वायर्ड. राइट, सो रीनल फिजियोलॉजी, in other words, we will be talking about, in this section we will be talking about process of urine formation, the process of osmoregulation, concentration and dilution of the urine, and lastly we will be talking about renal pathologies. Right beta? ठीक है, तो अब renal physiology, again मैं आपको एक suggestion दूंगा that you will have to see this video again and again to make sure that you are well understood with the concept. ठीक है, for your kind info that I will not be deleting this video within 24 hours. I'll keep it for at least 3 days so that you get an opportunity, not an opportunity, but then you get a way out कि आप ये वीडियो को बार बार समझ लो, इसके नोट्स बना लो. नोट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. Right, so and any particular doubts with respect to this particular section, you can post the doubts on the group or class group. Cool. So let's get started with renal anatomy. Renal physiology. ठीक है, तो renal physiology में हम पहला section बात करेंगे. The first section which we will be talking about is urine formation. Alright. So now it's a stepwise process. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो है इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस. योर कंप्लीट ब्लड, 5 लीटर ऑफ ब्लड गेट्स फिल्टर्ड. एक राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन हो जाता है विद इन 4 मिनट्स. सो दोनों किडनी को एफिशिएंटली काम करने के लिए 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड. 1 राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन इज डन in 4 minutes. It's just like जो अपने घर पे जो वेस्ट वाटर प्लांट्स में जो वाटर को रीयूज करते हैं ना, एक राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन पे चले जाता है, फिर दूसरे राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन पे जाता है, फिर तीसरे राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन पे जाता है. सो दैट इज द सेम प्रोसेस. राइट, योर ब्लड, योर किडनी ऑल्सो डज द सेम फंक्शन. एक राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें से जितने टॉक्सिन निकले वो निकले, देन अनदर राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन, अनदर राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन. सो इट इज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली वर्किंग. राइट बेटा, ठीक है. तो the process of urine formation, we'll have to understand 3 major steps में urine formation होता है. ठीक है, the 3 major steps which are employed in this particular process. The first and the most important step is ultrafiltration. पहला स्टेप क्या है बेटा? ultrafiltration. सेकेंड स्टेप क्या है? selective reabsorption. सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. Now we'll have to take each and every section and we'll have to discuss this in detail. Cool. So ultrafiltration को मैं एक और वर्ड बोल सकता हूं, glomerular filtration. ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में दूसरा टर्म यूज कर सकता हूं, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. Here it is very important to write reabsorption and not just absorption. ठीक है, tubular secretion doesn't have another name, it is just tubular secretion. Right बेटा? तो we will have to take up one particular section. We will first try to understand कि ultrafiltration क्या है. So for understanding ultrafiltration, we'll have to understand the recipe of, not the recipe, but then the process of making rasgullas. तो आज हम बायोलॉजी की क्लास में रसगुल्ले बनाएंगे. ठीक है, और रसगुल्ले बनाने के प्रोसेस से हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन को समझेंगे. Cool? So let's get started with ultrafiltration.
filtration, as the word says, ultra refers to microscopic, right? So ultrafiltration को मैं एक term बोलूंगा, it is filtration under pressure. Filtration under pressure. Filtration under pressure. ठीक है? But now we have to understand कि ऐसा क्या एनाटॉमिकल रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्या एनाटॉमिकल एडवांटेज है किडनी के पास कि किडनी ही फिल्ट्रेशन कर सकता है. व्हाई कांट एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कैन डू फिल्ट्रेशन, राइट? सो ऐसा क्या हो रहा है किडनी में दैट किडनी इज एफिशिएंटली डूइंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. 3 anatomical adaptation which I have already told you. First is the fenestrated capillaries of glomerulus. The second is the slit pores, and this third slit pores. ये slit pores किससे बना है? Third factor, that is pedicels of the podocyte. So ये एक anatomical requirement थी, right? But जब मैं ये लिख रहा हूँ it is filtration under pressure, where is this pressure coming from? किडनी में एक certain amount of pressure कैसे generate होता है, और ये तो चीज हमको पता है. Unless and until there is pressure, there will not be effective filtration, right? अगर मैं let's say for example दूध लिया है, दूध को मैंने उसमें से वे सेपरेट करके प्रोटीन सेपरेट किया है, इन लेमैन्स हिंदी टर्म दूध को फाड़ दिया, राइट? और उसको अगर मैं सेपरेट कर रहा हूं, आई ओनली वांट दी क्रीम, राइट? आई ओनली वांट दी प्रोटीन कंटेंट, राइट? सो उसको फिर मैं एक मसलिन क्लॉथ लेता हूं एंड आई फिल्टर दैट आउट. एंड इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, सिर्फ फिल्टर करने के बाद इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए मेरे को प्रेस करना पड़ता है. आई हैव टू अप्लाई द प्रेशर, राइट? अब प्रेशर अप्लाई किया तो द फ्लूइड व्हिच इज स्टक बिटवीन द प्रोटीन्स विल ट्रिकल डाउन, राइट? एंड दैट विल बी सेपरेटेड. सो इन अदर वर्ड्स इट इज guaranteeing you a very efficient filtration process. तो हमको ये बात करना है कि ये फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है. इज दैट राइट? सो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, आई टोल्ड यू इट इज अंडर प्रेशर. सो ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं व्हिच इज जनरेटेड इन द मैलफिजियन ट्यूब्यूल, माय मिस्टेक, इन द मैलफिजियन बॉडी. मैलफिजियन ट्यूब्यूल कहां पे होता है बेटा? कॉकरोच में होता है, मिस्टेक, ठीक है? सो इन द मैलफिजियन बॉडी, तो इन द मैलफिजियन बॉडी फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे जनरेट होता है? सो दिस फिल्ट्रेशन प्रेशर व्हिच इज जनरेटेड इज रेफर्ड टू एज नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है? एंड नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसी को हम क्या लिखेंगे बेटा? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. अब ये जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, दिस नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 10 mm of Hg. फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 10 mm of Hg. But one point of information, how did we understand कि 10 mm of Hg आया कहां से, right? So we'll have to understand कि 10 mm of Hg को derive कैसे किया, right? So this filtration pressure which is 10 mm of Hg is responsible for simple ultrafiltration. मतलब ब्लड में से फ्लूइड कंपोनेंट को सेपरेट करना. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ग्लोमेरुलस में से जो ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है दैट इज सेपरेटेड कंप्लीटली, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंपोनेंट एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल्स एंड लार्ज साइज प्रोटीन. लार्ज साइज प्रोटीन तो पास नहीं हो सकते और ब्लड सेल्स पास नहीं होते. अगर ब्लड सेल्स पास हो रहे हैं दैट मींस इट इज अ किडनी डिसफंक्शन. दैट कंडीशन, जब ब्लड सेल्स पास होंगे या फिर ब्लड इन द यूरिन होगा, या इन सिंपल वर्ड्स ब्लडी यूरिन होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमाटूरिया, right? So let's come back to net effective filtration pressure. So in ultrafiltration, except for blood cells and large size protein, everything else is filtered out. ठीक है? तो ये net effective filtration pressure generate करने के लिए there are 3 determining pressures. ठीक है? क्या है वो? 3 determining pressures है. So first, let's try to understand determinants of filtration pressure. Determinants of filtration pressure. ठीक है? इसको समझना पड़ेगा. ये समझने के लिए हम रसगुल्ला बनाएंगे. कूल? तो the first component is called as
glomerular hydrostatic pressure, glomerular hydrostatic pressure, ठीक है। इसी को मैं बोलूंगा, इसी को हम एक्रोनिम में यूज करेंगे, शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। आई विल यूज द वर्ड GHP और GBHP, ठीक है बेटा, GHP और GBHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है बेटा। अब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या, ठीक है, इट इज द प्रेशर जनरेटेड और क्रिएटेड, इट इज द pressure created in the glomerulus, pressure created in the glomerulus due to difference in the diameter of arterioles, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेंगे वो। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? इट इज प्रेशर क्रिएटेड इन द ग्लोमेरुलस ड्यू टू डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ आर्टेरियोल्स। डायमीटर ऑफ आर्टेरियोल्स के बारे में मेरे को पता है, किसका डायमीटर ज्यादा है बेटा? एफरेंट का ज्यादा है, डायमीटर ऑफ द एफरेंट इज मोर देन डायमीटर ऑफ इफरेंट, ठीक है। जब एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर छोटा है, मतलब आप इमेजिन कर लो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है एंड लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज लीविंग योर किडनी और ग्लोमेरुलस टेक्निकली। तो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एक सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक, एक स्टैग्नेंसी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा, है ना। कॉमन सेंस है बेटा कि अगर आपके घर पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर टाकी पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स में पानी आ रहा है एंड आपका जो आउटलेट है दैट इज प्रीटी स्मॉल, सो आउटलेट में से पानी बहुत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर से जाएगा और ये आउटलेट में से जब, बिकॉज आउटलेट में वी आर नॉट पुटिंग अप एनी पर्टिकुलर मोटर, राइट। सो आप पानी को ऊपर बिल्डिंग में ऊपर की टाकी में चढ़ाने के लिए यू विल हैव टू रिक्वायर अ मोटर, राइट, बट फॉर आउटलेट यू डोंट रिक्वायर अ मोटर, राइट। सो बोलने का मतलब ये है मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स इन एंड लेस अमाउंट ऑफ ब्लड मूव्स आउट, सो एक सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक, एक स्टैग्नेंट प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, इज दैट राइट। एंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डायमीटर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आपको ये याद करना है that glomerular hydrostatic, that is GHP is equal to 50 to 60 mm of Hg. देखो this particular value might vary in different reference books, बट हमको एक ही पर्टिकुलर चीज कंसिडर करनी है, ठीक है। आप इसको कोई बुक्स में आपको 55 to 60 दिया होगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। 55 to 60 दिया होगा तो आप अपर लिमिट लोगे 55 एवरेज लोगे, अगर 60 भी लोगे तो भी आपका ऑन एन एवरेज बाकी सब आंसर्स आपको, अगर एक पर्टिकुलर रेंज का अपर लिमिट ले रहे हो तो बाकी दो फैक्टर्स है उसकी भी अपर लिमिट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लोअर लिमिट ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे लोअर लिमिट ले रहे हो तो आपको सबके लोअर लिमिट लेने पड़ेंगे, अपर लिमिट ले रहे हो तो आपको सबके अपर लिमिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है बेटा। तो ऑन एन एवरेज ये पर्टिकुलर वैल्यू हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यही कंसीडर करेंगे, दिस इज द करेक्ट वैल्यू व्हिच वी हैव गॉट, व्हिच आई हैव टेकन अप फ्रॉम योर हायर लेवल्स ऑफ फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी में इस चीज की वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, सो वी डू नॉट हैव अ कैंडिड वैल्यू, सो इट इज गिवन इन अ रेंज। क्या रेंज है? 50 to 60 mm of Hg ऑन एन एवरेज वी कंसिडर, एवरेज कंसिडर करेंगे हम 55 mm Hg। क्यों कर रहे हैं इतना तामझाम? क्योंकि वी हैव टू डिराइव ये 10 आया कहां से, ये 10 mm of Hg आया कहां से, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है GHP is 50 to 60 mm of Hg, एवरेज कितना है बेटा? 55 mm of Hg, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा फैक्टर है दैट इज द चीफ डिटरमाइनिंग फैक्टर,
इट इज द चीफ फैक्टर जिसकी वजह से, चीफ डिटर्मिनेंट फैक्टर जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चीफ डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड ऑल्सो एक और चीज क्या, इट इज सपोर्टिंग फिल्ट्रेशन। बात तो सही है, सपोर्ट्स फिल्ट्रेशन, राइट। और एक लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, तो इट इज जनरेटेड, इट इज सीन, इट इज जनरेटेड इन द ग्लोमेरुलस, इट इज जनरेटेड इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है बेटा, है ना। तो quick recap of what we did. We started up with NEF, that is net, NEF, that is net effective filtration, pressure and determinant factor में हमने सबसे पहला determinant factor क्या बोला, glomerular hydrostatic pressure, and glomerular hydrostatic pressure क्या है, it is the pressure created in the glomerulus due to difference in the diameter of the arterioles, ठीक है। वैल्यू याद कर रहा है, वैल्यू के साथ ये याद करना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है चीफ डिटरमिनेंट फैक्टर क्या है, एंड इट इज सपोर्टिंग फिल्ट्रेशन। वही है ना बेटा कि अगर एक सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक पानी अगर स्टैग्नेंट हो रहा है एक सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ब्लड में से फ्लूइड कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड, दैट इज प्लाज्मा कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड, इट विल बी पुश्ड आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमैन्स कैप्सूल, समझी क्यों। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर। दूसरे डिटरमाइनिंग फैक्टर के पास जाते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू समराइज ऑल ऑफ दिस, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रसगुल्ले, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। सेकेंड डिटरमिनेंट फैक्टर इज रेफर्ड टू एज B, ब्लड colloidal, B, C, osmotic, O, pressure. So it is referred to as BCOP, blood colloidal osmotic pressure. देखो ये चीज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस एक बार कर लिया है इन टिश्यूज, बट फॉर पीपल हु डोंट पे अटेंशन, अगेन लेट्स रिकैप दिस पर्टिकुलर थिंग। ब्लड colloidal osmotic pressure, अब ब्लड में सर्टेन अमाउंट ऑफ लार्ज साइज प्रोटीन्स है, राइट, एंड दीज लार्ज साइज प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड टू मेक द ब्लड हाइपरटोनिक, है ना। तो अगर इमेजिन कर लो ये तुम्हारी कैपिलरी है और एक कैपिलरी के आसपास सेल्स है, कैपिलरीज तो टिश्यूज के आसपास होंगे ना बेटा, तो कैपिलरीज के आसपास सेल्स है, राइट। If your blood has large number of large size proteins, blood के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, ब्लड के अंदर बहुत सारे लार्ज साइज प्रोटीन्स है, can I say the solute concentration of the blood is more, right? So solute concentration of the blood is more, तो ये जो ब्लड का जो solution component है या फिर ब्लड जो है, can I say because of the large size protein, can I say the blood is hypertonic, राइट। तो ब्लड अगर हाइपरटोनिक है, क्या फ्लूइड ब्लड हाइपरटोनिक है, वेयर इज द फ्लूइड मूविंग फ्रॉम, इज इट मूविंग फ्रॉम हाइपर टू हाइपो या हाइपो टू हाइपर, इट मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, समझ में आ गया बेटा। हाइपर से हाइपर को तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, so why will it go out, right? So since because of these large size proteins, colloidal proteins like albumin, आपका ब्लड becomes hypertonic and the fluid is resisted, fluid का मूवमेंट जो है वो रेजिस्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना फ्लूइड का रेजिस्टेंस, fluid का मूवमेंट will not be effectively taking place. Is that very clear बेटा, है ना। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ग्लोमेरुलस में भी ऐसी कंडीशन है, so whatever blood comes into the glomerulus, because of the large size protein, the filtration is resisted. Very clear? Stagnancy की वजह से एक filtration आ रहा है, तो filtration resist हो रही है, and that resisting filtration pressure is called as blood colloidal osmotic pressure. So let's try to write down the definition. It's the pressure created or pressure generated due to large sized
large size colloidal proteins called example albumin. ठीक है बेटा, देखो एक क्वाशियोर्कर में हमने देखा था, क्वाशियोर्कर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, और क्वाशियोर्कर में हमने देखा था कि इडीमा होता है। लॉजिक है ना कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, तो ब्लड में कोलॉइडल प्रोटीन्स कम रहेंगे, ब्लड में कोलॉइडल प्रोटीन्स कम हो गए तो कहने से ब्लड का सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गया, अब ब्लड में पानी बहुत ज्यादा है, इसका सोल्यूट कम है, पानी बहुत ज्यादा है, सो ब्लड में से पानी विल मूव आउट। सो ये जो हमने बनाया इसको ही चेंज करना पड़ेगा अगर ब्लड पे है, सो दिस विल बिकम हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक है तो ये सब होगा ही नहीं, सो इट विल फ्रॉम द ब्लड द फ्लूइड विल मूव आउट, और वो इट विल मूव आउट एंड इट विल स्प्रेड अराउंड द टिश्यू। अगर ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट टिश्यूज के अराउंड फैल जाता है, दैट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एज इडीमा। तो क्वेश्चन में इडीमा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट? इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बेटा? और एक्सेसिव प्रोटीन रिच डाइट खाओगे तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, राइट? एंड एल्ब्यूमिन कहां पे एल्ब्यूमिन बनता है तुम्हारे बॉडी में? लिवर। Very important with respect to exam point of view. So it is due to large size colloidal proteins. ठीक है, large size colloidal proteins अगर है तो इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, द एवरेज वैल्यू क्या होगा? सो BCOP on an average is 32 mm of Hg. ठीक है, 32 mm of Hg on an average. For my calculative purpose I will take it as 30 mm of Hg, बिकॉज़ मैं रेंज के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, 30 mm of Hg। इज इट वेरी क्लियर? अब ये तो हमने बात किया, अगर ब्लड में प्रोटीन बहुत ज्यादा रहे, विल द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस? इट विल नॉट टेक प्लेस, राइट? मतलब फ्लूइड ग्लोमेरुलर से बाहर मूव ही नहीं कर पाएगा। सो कैन आई से इट इज रेजिस्टिंग फिल्ट्रेशन, राइट? एक फिल्ट्रेशन डिटरमिनेंट फैक्टर देखा था आपने, दैट इज GHP, जो सपोर्ट कर रहा था फिल्ट्रेशन, यह फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है, राइट? सो दिस इज रेजिस्टिंग फिल्ट्रेशन। वेरी क्लियर? थर्ड डिटरमिनेंट फैक्टर ले लेते हैं। तीसरा डिटरमिनेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Capsular hydrostatic pressure, also referred to as CHP. ठीक है, पहला प्रेशर जो था ग्लोमेरुलर GHP, सेकेंड प्रेशर जो है BCOP. Both of them are exerted where? They are exerted in the glomerulus. मतलब technically they are exerted in the capillaries. Whereas ये जो प्रेशर है, नाम बता रहा है बेटा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. So this is the pressure generated due to stagnancy of glomerular filtrate. Stagnancy of glomerular filtrate in the Bowman's capsule. समझी क्यों? सो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ड्यू टू स्टैग्नेंसी ऑफ, मतलब जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है कप के अंदर, क्या कप के अंदर वो बोमन्स कैप्सूल कप के जैसा है, क्या कप के अंदर फ्लूइड वैसे स्टैग्नेंट होगा? अगर कप के अंदर फ्लूइड वैसे स्टैग्नेंट होगा, विल द फिल्ट्रेशन इफेक्टिवली टेक प्लेस? इट विल नॉट टेक प्लेस, राइट? सो इसका डिटरमिनेंट फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? द वैल्यू CHP को हम ले लेंगे 15 to 18 mm Hg,
सो ऑन एवरेज हम इसको ले लेते हैं 15 mm Hg। ठीक है बेटा, 15 mm Hg क्या करेगा? विल इट सपोर्ट फिल्ट्रेशन और विल इट रेजिस्ट फिल्ट्रेशन? क्या करेगा? विल इट सपोर्ट फिल्ट्रेशन और विल इट रेजिस्ट फिल्ट्रेशन? इट विल रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। इट विल रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। वेरी क्लियर? ठीक है, तो a quick recap. We started up with GHP, BCOP and CHP. चलो अब बनाते हैं रसगुल्ले। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। We'll try to correlate these filtration pressure. Let me erase this much and we'll try to correlate this pressure and then we'll take up a diagram. ओके, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एफरेंट आर्टरियोल है, दिस इज योर एफरेंट आर्टरियोल एंड दिस इज योर इफरेंट आर्टरियोल। तो यहां से ब्लड एंटर करेगा, यहां से ब्लड एग्जिट करेगा, राइट? सो इन डिफरेंस के वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड दैट प्रेशर विल लेट द फ्लूइड, विल लेट द ब्लड मूव आउट। सही बात है ना? तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा? इट विल ट्राई टू मूव द ब्लड आउट। वेरी क्लियर? ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है? तो हमने ब्लैक में क्या इंडिकेट किया है? हमने ब्लैक में क्या इंडिकेट किया है? GHP। ठीक है, अब सेकेंड फिल्ट्रेशन प्रेशर इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तो ग्लोमेरुलस में जनरेट होगा एंड विल रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। तो ये ब्लड के अंदर ही रेजिस्ट होगा। Are we understanding this much? So ब्लू में हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? BCOP। ठीक है, एंड थर्ड वाला क्या है? CHP, जो कैप्सूल में एग्जर्ट होगा। देखो एरो को थोड़ा सा ध्यान दो, जो कैप्सूल में बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट फ्लूइड ये कैप्सूल में जनरेट होगा। ग्रीन से हम इंडिकेट करेंगे CHP। ग्रीन से हम इंडिकेट करेंगे CHP। इज दैट राइट? चलो इसको कोरिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ। अब BCOP क्या है, CHP क्या है, रसगुल्ला कैसे बनाएंगे वो बात करते हैं, राइट? आपने दूध को फाड़ लिया है, यू हैव टेकन अ मसलिन क्लॉथ, बट मसलिन क्लॉथ अब क्या ऐसे जमीन पे ही फिल्टर करते हो क्या? यू टेक इट, आप एक पतीला लेते हो, उस पतीले पे मसलिन क्लॉथ डालते हो, राइट? एक खाली पतीला लेते हो, उसमें मसलिन क्लॉथ डालते हैं, देन यू फिल्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? और फिल्टर करने के बाद आप क्या करते हो? यू प्रेस इट। आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप एक मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, राइट? उससे भी ट्रिकल डाउन नहीं होता, पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है कि वो कोई ऐसे चीज पे बांध के रखती है, राइट? और 15-20 मिनट हम बांध सेट करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। व्हाई? इफ यू आर गिविंग दैट टाइम, बांध के रखते हैं स्टेडी पोजीशन में, द फ्लूइड कंपोनेंट, द वाटर विल ट्रिकल डाउन एंड विल गेट सेपरेटेड। सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं।
सो जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज सिमिलर टू GHP। जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज सिमिलर टू GHP, राइट बेटा। अब BCOP को कोरिलेट करते हैं। व्हाई डू यू यूज ओनली मस्लिन क्लॉथ फॉर फिल्ट्रेशन? कोई दूसरा कपड़ा क्यों नहीं यूज कर सकते, है ना? दूसरा कपड़े का मतलब व्हाई कांट वी यूज अ टर्किश टॉवल? टर्किश टॉवल समझते हो, वो मोटी वाली टॉवल होती है। सो फॉर फिल्ट्रेशन व्हाई डू वी यूज दैट? व्हाई डू वी यूज अ मस्लिन क्लॉथ? क्योंकि उसकी पोर साइज है बेटा, उसमें से फ्लूइड इजीली पास होगा, अग्रीड। बट अगर मैंने टॉवल यूज किया तो वो उसमें तो ऑब्जॉर्बिंग क्वालिटी है, उसमें पोर साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटी है और ज्यादा छोटी है, तो उसमें से फ्लूइड इजीली पास नहीं होगा। इज दैट वेरी क्लियर? सो बोलने का मतलब क्या, अगर मैंने टॉवल ले लिया और टॉवल में मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द पोर साइज, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द इन द टॉवल, फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं। मतलब घंटे आप पकड़ के रखो तो भी फ्लूइड विल नॉट ट्रिकल डाउन। Why? Because the tiny pore size is resisting the filtration. ये चीज हो रहा है यहाँ पे भी, BCOP में भी, राइट। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे? हम यहाँ पोर साइज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम लार्ज साइज की बात कर रहे हैं। लार्ज साइज प्रोटीन की वजह से the concept is well understood. लार्ज साइज प्रोटीन की वजह से the blood fluid component of the blood becomes hypertonic, and this hypertonicity will resist the movement of water from glomerulus to outside. Cool? So BCOP is related with that, right? अब बात करते हैं CHP। तभी टॉवल को निकाल दो सीन में से, वापस आते हैं मस्लिन क्लॉथ में। पतीला है, मस्लिन क्लॉथ है, और आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, है ना? आपने ये कर दिया। अब जब भी आप GHP अप्लाई कर रहे हो, जब भी आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या करते हो आप पहले तो कपड़ा उठाते हो, राइट? यू रेज इट एंड देन यू प्रेस इट, करेक्ट? क्या होगा अगर मैंने वो पतीले के अंदर ही उसको प्रेस करने की कोशिश करी? पतीले में तो फ्लूइड जमा हो गया, मतलब पतीले में ऑलरेडी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा हो गया है, पतीले में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा हो गया है, और अगर उसी पतीले में मैं फिल्ट्रेशन GHP अप्लाई कर रहा हूं, विल दी फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इफेक्टिवली? जितना पानी जा रहा है वो उतना ही पानी एंटर हो रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग इट? सो CHP यहाँ पे क्या है बेटा? CHP इज दैट स्टैग्नेंट फ्लूइड, करेक्ट? वो स्टैग्नेंट फ्लूइड जो पतीले में जो स्टैग्नेंट फ्लूइड है दैट कैन बी कोरिलेटेड विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, करेक्ट? और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वहां पे रहेगा तो फिल्ट्रेशन इफेक्टिवली होगा नहीं, तो ये भी रेजिस्ट कर रहा है। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम? उस पतीले को खाली कर देते हैं, या फिर हम पतीले से ऊपर उठाते हैं कपड़े को, एंड देन वी प्रेस इट, देन वी अप्लाई दी GHP, राइट? एक सिंपल प्रोसीजर है। मैंने आपको ये सब चीजें तो बता दी कि प्रोटीन कैसे सेपरेट करते हैं। अब बाकी क्या रेसिपी जो है आपके मम्मी को पूछ लो कि रसगुल्ले कैसे बनाते हैं, और आपने नहीं बनाना, उनको बोलना बना के देने, और खा लेना, ठीक है? आई नो इट इज अ टफ टास्क, अगेन कम बैक। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया है। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज प्रीटी इजी फॉर यू गाइस, एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है? कौन कौन ये सपोर्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन? ये दिस इज रेजिस्टिंग फिल्ट्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टिंग फिल्ट्रेशन, ठीक है बेटा? अब बात करते हैं नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला। सो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू नेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोर्टिंग, करेक्ट? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? GHP माइनस ये सपोर्टिंग फिल्ट्रेशन, और बाकी दोनों रेजिस्टिंग फिल्ट्रेशन को ऐड कर दो, BCOP प्लस CHP। आपको एग्जामिनेशन में ये तीन फैक्टर्स दिए जाएंगे, दे माइट गिव यू द वैल्यू एंड यू विल हैव टू डिराइव द वैल्यू। तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करने दे देंगे। सी अंडरस्टैंड, इट इज बेसिक एंड आई विल नॉट बी टेकिंग दिस इफ यू गो रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। वेरी क्लियर? इसमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, प्लस माइनस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, देन यू विल हैव इट फ्रॉम मी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई विल मेक श्योर दैट एक्स्ट्रा 10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर पेपर, ठीक है? जो हमेशा करता हूं मैं, ठीक है? तो दिस सेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट है और इजी है बेटा। मेरे को वही चीज में बुरा लगता है कि इजी क्वेश्चन में अगर आपके मार्क्स जाते हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट स्टडीइंग एफिशिएंटली।
वेरी क्लियर। तो कम बैक, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बेटा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। सो वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना लिया था GHP हमने 50 माइनस 30 प्लस 15, दैट कम्स टू 50 माइनस, सॉरी 50 नहीं लिया था हमने, 55 लिया था ना बेटा, 50 to 60 का रेंज लिया था हमने, तो 50 to 60 के रेंज में हमने एवरेज 55 लिया था। सो 55 that becomes 45 and that becomes 10 mm of Hg. So net effective filtration pressure is 10 mm of Hg. देखो, the easiest section of the renal physiology में ऐसे बोलता हूँ, complicated है, but वो जब भी आप समझने लगते हो ना तो it becomes easy. So पहले डर लगाना पड़ता है so that बच्चे बहुत ध्यान से सुने, and then it turns out to be very easy because you paid attention. So जिसको चीजें समझ में आती है ना वो उसको सब चीजें easy लगती है। अगर मेरे को आज वर्ल्ड मैप समझ में आ जाए तो मेरे को वर्ल्ड टूर would be comparatively very easy. Right? To be example, I totally understand that particular thing, right? But that is with respect to urine formation. ठीक है, अब अपने को एक वैल्यू डिराइव करना है, and that value is something called as filtration fraction. ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को अपने दिल में गांठ मार लो, ठीक है। चलो बैक, another concept, अब है ना फिल्ट्रेशन की रेट को डिटरमाइन करनी है, राइट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज GFR refers to glomerular filtration rate। अब ये रेट बात हो रही है रेट की। रेट इज समथिंग कॉल्ड रेट is associated with time, हम टाइम को as a determinant factor लेते हैं। So what is glomerular filtration rate? It is the amount of glomerular filtration rate is the amount of glomerular filtrate formed in all the nephrons of both kidneys per minute। ठीक है, what is GFR? It is amount of glomerular filtrate formed in all the nephrons of both the kidneys per minute। ठीक है, तो GFR की वैल्यू हम डिराइव करेंगे। So 1 mm of Hg is responsible to filter or form 12.5 glomerular filtrate। 1 mm of Hg की वजह से, मतलब अगर ग्लोमेरुलस में 1 mm of Hg का प्रेशर है तो इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। तो अगर 10 mm of Hg है तो कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा बेटा, 125 ml पर मिनट। ठीक है, ये वैल्यू को याद कर लो, 125 ml पर मिनट। सो आपका GFR कितना है, योर GFR वुड बी 125 ml पर मिनट। क्या है ये, बेसिकली दिस इज दी GF, दैट इज glomerular filtrate which is being formed। ठीक है, अब एक और फ्रैक्शन है, ये इतना आपको समझ गया है। अब दूसरा एक डिटरमिनेंट फैक्टर है जो हम समझेंगे, एंड दैट इज फॉर, ये हो गया GFR, एंड द अदर फैक्टर व्हिच विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, renal plasma flow, also referred to as RPF, renal plasma flow। ठीक है, अब ये क्या है, रीनल मतलब नेफ्रिक ट्यूब्यूल में कितना प्लाज्मा फ्लो है पर मिनट। ये तो हम वी आर ओनली रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू ग्लोमेरुलस, वी आर ओनली ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। ये सिर्फ मैल्फिजियन बॉडी तक रेस्ट्रिक्टेड है GFR। ठीक है, RPF
is completely covering the entire tubule. पूरे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में कितना प्लाज्मा फ्लो हो रहा है पर मिनट. सो हाउ डू यू डिफाइन इट? It is the amount of plasma or filtrate. अब देखो फिल्ट्रेट इसलिए लिख रहा है बेटा, बिकॉज जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और प्लाज्मा बनता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर प्लाज्मा में भी ब्लड सेल्स नहीं होते, बट प्लाज्मा में थोड़े से बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज साइज प्रोटीन्स होते हैं. एक्सेप्ट फॉर द लार्ज साइज प्रोटीन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम. इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा हूँ फिल्ट्रेट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आइडियली डेफिनेशन में फिल्ट्रेट नहीं आता है तो हम ये लिखते हैं डेफिनेशन में कि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा. यहाँ पे since I told you plasma and filtrate is almost compositionally same, right? So amount of plasma or filtrate passing through nephric tubules per minute. ठीक है, तो आरपीएफ क्या है? अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द नेफ्रिक ट्यूब्यूल पर मिनट इज कॉल्ड एज रीनल प्लाज्मा फ्लो. अब ये रीनल प्लाज्मा फ्लो आया कहां से? लेट्स ट्राई टू डिराइव दैट एज वेल. ठीक है, लेट्स ट्राई टू डिराइव दैट. अब आपको ये याद करना है in a healthy individual जिसकी वेट होगी, हेल्दी इंडिविजुअल जिसकी वेट इज अप्रोक्सीमेटली 70 kgs. ठीक है, तो 70 kg का इंडिविजुअल जो है उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा? फॉर दिस ऑन एन एवरेज द कार्डियक आउटपुट विल बी 5 liters. तो हमने कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 5 liters और 500 ml. करेक्ट. सो ये 5 लीटर आपका टोटल कंपोनेंट है, राइट? टोटल कंपोनेंट ऑफ ब्लड है. अब ये 5 लीटर में से 25% ऑफ टोटल ब्लड, 25% of the total blood passes through kidney. देखो अभी इसलिए मैंने आपको ये बताया कि किडनी को कंप्लीट एक राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा? ओनली 4 minutes. तो 25% 1 मिनट में, 25% 1 मिनट में एंड 100% 4 minutes में. So 25% of the total blood passes through the kidney. So therefore कितना ब्लड पास होगा इसमें से? Therefore 25% of 500 ml. क्या आंसर आएगा बेटा? ऑन एन एवरेज आपको कितना आंसर आना चाहिए? 25 into 5 1250 ml. ठीक है, सो आपका आप ये वैल्यू आया है. सो आपको समझ रहा है कि हेल्दी इंडिविजुअल की कार्डियक आउटपुट लिया हमने. अब ये कार्डियक आउटपुट हमको बताया कि आउट ऑफ दिस एंटायर ब्लड 25% ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी. सो कितना ब्लड पास हो रहा है थ्रू द किडनी पर मिनट? 125 ml. Therefore 1250 ml of blood passes through kidneys. ठीक है, पर मिनट. बट इसमें से हमको फ्लूइड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, रीनल प्लाज्मा फ्लो फाइंड आउट करना है. तो अब फॉर माय कैलकुलेटिव पर्पस से हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमने सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 में हमने बात किया था दैट प्लाज्मा कंपोनेंट जो है, प्लाज्मा कंपोनेंट इज 55% एंड जो आपका ब्लड सेलुलर कंपोनेंट है दैट इज 45%, राइट? बट फॉर योर कैलकुलेटिव पर्पस में वी टेक अप द प्लाज्मा परसेंट एज 52%. ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 1250 ml प्लाज्मा कितना है बेटा? 52%. सो देयरफॉर यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, देयरफॉर 52% since 52% of the blood
Therefore, RPF is equal to 52% of 1250. That is 52 upon 100 into 1250. बच्चों जैसे मैथ्स में भी करता हूँ. So that somewhere down the line it comes to आपका जो आंसर आएगा वो आपको आएगा अराउंड 650 ml per minute. 650 ml per minute. डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? ये जो वैल्यू है ये सारे किडनीज में, सारे नेफ्रॉन्स में, सारे किडनीज नहीं, सारे नेफ्रॉन्स में ऑफ बोथ द किडनी, दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन दिस रीजन. ठीक है, 125 ml of fluid is formed, that is glomerular filtrate is formed in the Bowman's capsule per minute. ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है? ऑन एन एवरेज दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स के सारे टिब्यूल्स में, पीसीटी, डीसीटी, लूकोवेले, सारे टिब्यूल्स में जितना फ्लूइड जमा हो रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 650 ml per minute. वेरी क्लियर? ठीक है, वो ग्लोमेरुलर तक रेस्ट्रिक्टेड, अपना मैल्फिशियन बॉडी तक रेस्ट्रिक्टेड है, और ये पूरा नेफ्रिक टिब्यूल तक है. इज दैट वेरी क्लियर? सो बोथ ऑफ देम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. ये प्लाज्मा फ्लो है, वो फिल्ट्रेट है. आई टोल्ड यू फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा इज कंपोजिशनली दी सेम, राइट? बट टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, इसलिए हमको अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ता है इन डेफिनेशन. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, तो GFR हो गया, RPF हो गया. GFR हो गया, RPF हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Let's try to understand filtration pressure, filtration fraction. Nice. Filtration fraction. Filtration fraction का फॉर्मूला है GFR upon RPF. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? GFR upon RPF. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो GFR कितना आ रहा है बेटा? 125 अपॉन 650 into 100, क्योंकि ये दोनों ml per minute है, ml per minute है. The units will be cancelled out, so we take it as a percentage. So on an average जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को मिलता है 19.2%. इसी को मैं राउंड ऑफ करके लिख लूंगा 20%. ठीक है, don't go with your math. ठीक है, don't go with your math. This is just your basic. बायोलॉजी में यही टाइप के मैथ्स आते हैं. ठीक है, सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना आ गया आपको वैल्यू बेटा? इट इज 20%. इतना समझा है? So what we understood today was complete ultrafiltration, glomerular filtration pressure. ठीक है, we spoke about GHP, then we spoke about BCOP, and then we spoke about CHP. GHP की वैल्यू हमको याद करनी है 50 to 60, और BCOP की वैल्यू 30 to 32, और CHP की वैल्यू दैट इज समवेयर डाउन द लाइन. कितना वैल्यू बात किया था हमने? 15 to 18 mm of Hg. राइट? उसके बाद we understood the formula for net effective filtration pressure. Right? And after that we understood GFR क्या है and RPF क्या है. And then taking the ratio of both of them, we got the expression for, or we got the value for filtration fraction. Is that very clearly understood बेटा? ठीक है, अब 2-3 फैक्टर्स ये टॉपिक को थोड़ा सा खत्म करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक को खत्म करते हैं. ठीक है, इतना अगर आपको कॉपी करना तो आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है बेटा? Okay.
Now let's try to understand what is the factor affecting GFR. Factor affecting GFR. ठीक है, इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन खत्म कर लेते हैं आज। ठीक है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR। ठीक है, अब पहला फैक्टर क्या है बेटा? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब अगर तुम्हारे बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कॉमन सेंस, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एफरेक्ट आर्टरियल में प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, कैन आई से इंक्रीज्ड GHP होगा, इंक्रीज GHP होगा, राइट? और इंक्रीज GHP विल इंक्रीज, अगर इंक्रीज GHP होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होगा ना, ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है, राइट? And already hydrostatic pressure create हो रहा है in the glomerulus, right? So more and more glomerular filtrate will be formed per minute, correct? So अगर blood pressure बढ़ा तो GHP बढ़ेगा, GHP बढ़ेगा तो ultimately glomerular GFR बढ़ेगा। ठीक है, but one important point to be remembered, extremely important point to be remembered, that increased GFR का जो हम point लिखते हैं, देखो according to theoretical biology, increase BP, increase GHP, increase GFR, but practically ये जो GFR increase होता है that is very less, considerably very less। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है so आपका GFR इफेक्ट होगा, but that effect on the GFR will not be predominant, it will not be considerably high। but वही केस है बेटा, अगर GHP कम हो गया, अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, that is when the GFR will be affected greatly। Is that very clear? So blood pressure increase हुआ तो GFR increase होगा, but it is not a very considerable effect, because देखो बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है टू कंट्रोल दी ब्लड प्रेशर। योर हार्ट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया है दैट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हैव अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, करेक्ट? सो हार्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट इंक्रीज होगा टू मैनेज दी ब्लड प्रेशर। वेरी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि GFR इंक्रीज होगा बट दैट विल बी कंसिडरेबली वेरी लेस। तो अगर ऐसा हो रहा है बेटा, अगर ऐसा हो रहा है GFR इंक्रीज हो रही है, कहना चाहिए फ्लूइड बहुत ज्यादा बनेगा, अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा बनेगा इन दी कप दैट फ्लूइड हैज टू पास, तो RPF भी बहुत ज्यादा होगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर बहुत ज्यादा है, फ्लूइड बहुत ज्यादा बन रहा है इन दी कप, और यही कप का फ्लूइड विल बी पुश्ड आउटसाइड, बाहर फेंका जाएगा, है ना? तो जब बाहर फेंका जाएगा इसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट विल आल्सो बी लॉस्ट, बिकॉज़ जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में ऑल दोस वाइटल कंपोनेंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, करेक्ट? सो अगर बहुत सारा फ्लूइड बन रहा है और बहुत सारा फ्लूइड आगे धक्का मारते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो योर किडनीज डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अब्सॉर्ब वाइटल न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो इसकी कंडीशन में व्हाट विल हैपन? What will happen if this condition is seen? Vital components are not reabsorbed efficiently. Vital components are not reabsorbed efficiently. Vital components are not reabsorbed efficiently. तो आपके जितने भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, दैट विल बी वेस्टेड आउट ऑफ द यूरिन। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर ले लेते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत कम हुआ, कहना इसे अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो एफरेंट आर्टरी में भी कम प्रेशर आ रहा है, कम प्रेशर से ब्लड आएगा, राइट? सो अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो योर GHP विल आल्सो डिक्रीज। अगर GHP डिक्रीज हुआ तो GFR will also decrease. But this effect on the GFR is impactful. ठीक है,
वेरी लेस, यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए लॉट ऑफ पीपल किडनी डिस्फंक्शन या फिर किडनी फेलियर का मेजर देखो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज अगर हो रहा है दैट कैन बी ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स। जिसको डायबिटीज है उनको फ्री में हाइपरटेंशन की डिजीज मिल जाती है, फ्री में, right? That is undoubtedly it is supposed to happen. If a person is suffering from chronic diabetes, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आनी ही है। Is that very clear? पर अगर किसी की ब्लड प्रेशर इतनी कम हो गई तो किडनी फेलियर के तुरंत चांसेस है। A lot of I have seen a lot of young people on an average of age 25, 26, है ना? तो I have seen such patients also जिनके किडनी इस एज में पर्टिकुलरली डैमेज हो चुके हैं, राइट? तो किडनी डैमेज के लिए किडनी डैमेज के लिए रीजंस क्या है? अगर बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है, राइट? और या फिर अनदर फैक्टर इज अगर आपको कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए हैं, अनदर फैक्टर इज ब्लड प्रेशर, राइट? तो जितने भी पेशेंट्स जो यंग पेशेंट्स देखे हैं उनको डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर नहीं होता, तो उनके जो किडनी फेलियर है दैट इज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। सो इन सच पेशेंट्स रीनल ट्रांसप्लांट कैन बी सक्सेसफुल। जनरली हम बोलते हैं दैट जिसको डायबिटीज है उनका रीनल ट्रांसप्लांट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज डायबिटीज इज अ कंडीशन विच इज नॉट क्योर्ड, इट इज ओनली मैनेज्ड, सिर्फ मैनेज किया जाता है, राइट? सो जो ओल्ड एज में जो किडनी फेलियर होती है दैट इज मेजरली ड्यू टू डायबिटीज, बट जो यंग पीपल में जो किडनी फेलियर होती है दैट कैन बी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। वेरी क्लियर बेटा? सो जीएफआर डिक्रीज होगा, अगर जीएफआर डिक्रीज होगा तो कैन आई से फ्लूइड कम बनेगा और फ्लूइड धीरे धीरे पास होगा, करेक्ट? अगर फ्लूइड धीरे धीरे पास होगा, कैन आई से चलो धीरे पास हो रहा है तो वाइटल कंपोनेंट्स तो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, राइट? बट वाइटल कंपोनेंट्स के साथ कुछ टॉक्सिन्स भी रीअब्सॉर्ब होंगे, तो टॉक्सिन्स विल नॉट बी एफिशिएंटली रिमूव्ड, राइट? यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हो रहा है कि बहुत फास्ट पानी मूव हो रहा है, राइट? बहुत फास्ट फ्लूइड मूव हो रहा है, तो जो वाइटल कंपोनेंट्स है दे आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी अब्सॉर्ब्ड, रीअब्सॉर्ब्ड। और यहाँ पे क्या है, एकदम स्लो जा रहा है, और एकदम अगर स्लो जा रहा है फ्लूइड, सो टेक्निकली योर टॉक्सिन्स विल नॉट बी एलिमिनेटेड प्रॉपर्ली। सो अगर जीएफआर बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा बेटा? टॉक्सिन्स विल नॉट बी एलिमिनेटेड, टॉक्सिन्स विल नॉट बी एलिमिनेटेड प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली। समझी क्यों? ठीक है? So two major components with respect to ultrafiltration we have already done, right? देखो ये components बहुत ज्यादा important है because अब तुमको ये last section of the chapter में भी लगेगा। Very clear? So we are done with only one particular section. In the next class we will be taking up tubular reabsorption and tubular secretion, and then we will if time permits we will also continue the further part of the chapter. Very clear? So please read, please listen to the videos, please see these videos again and again, right? And please read and make a schedule for yourself. Please be please stick to the time, right? And पढ़ाई करते रहो बेटा, don't get your body become lethargic, right? So और अननेसेसरी प्रवचन नहीं दूंगा, यू गाइज आर मैच्योर्ड, है ना? आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हो, 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, सो आई पर्सनली थिंक दैट you should be focused with respect to your career, right बेटा? चलो, that is all for today. Take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you so much.